Hello students, welcome back to my channel English classes Savita Shoran. As you know, we have done present all parts of present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. But in this video we are going to start past tense. After present, now we start past, present we have done, and after this we will do future. In this video we will do past indefinite tense. Like present tense, there is also 4 parts: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. In this video we will do past indefinite in a explained way. What are the formations? First of all, we will discuss formations. First of all, we will take simple sentence and affirmative sentence. How many formations in each tense? 5 formations, as you know. Simple sentence, you can see affirmative sentence. Second one is negative sentence. Third one is interrogative sentence. Fourth one is negative and interrogative sentence. And one more thing, WH word with question. To ask question with WH word we make a sentence. So let's take first formation: subject, verb and a object. Subject, and what is the verb here? Here V2, second form of the verb, and in all tenses, in present all parts, in past all parts, in future, everywhere where you will observe, you will get only this thing. In simple sentence and in past indefinite we use V2. हम सिर्फ V2 पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में आपको मिलेगा और कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं मिलेगी. सिंपल सेंटेंस इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस विच हैव नो नेगेटिविटी, नो क्वेश्चन मार्क, जो एक सिंपल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. देन this one is our simple sentence. Simple sentence. Second formation is, let's take example first. I received your letter yesterday. I is a subject, received is our verb, second form of the verb, your letter is our object, and this one is time. Yesterday किसको indicate कर रहा है? पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है. दैट्स वाई वी यूज हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज ए सिंपल स्टेटमेंट. देयर इज नो नेगेटिविटी, देयर इज नो क्वेश्चन. आई रिसीव्ड यूर लेटर yesterday. नाउ टेक सेकेंड फॉर्मेशन, सब्जेक्ट. सेकेंड फॉर्मेशन इज नेगेटिव, एंड फॉर नेगेटिव you know very well in present tense I told to you so many times this thing. In negativity, what we will do? Helping verb we need everywhere for negativity, because not always come with a helping verb. And what is the helping verb in past indefinite? In past indefinite, our helping verb will be did. Then I take did, subject, helping verb, not, first form of the verb and a object. It's very simple. What is the change? Change is only we use not here for to make a negative sentence to the affirmative sentence. But one more thing, here is first form of the verb and here is second form of the verb. I told you only in simple sentence we will use second form of the verb, and in other sentences, in other formations, we will use first form of the verb. It means did will come with first form of the verb. In present also we did, but we did do or does also take a V1, or did also here take V1. It means all three will take first form of the
verb. Next, make this sentence. Now change it negative. I, subject as it is will be. Then helping verb we will apply. I did not. I didn't receive your letter yesterday. It's very simple. You are able to do it. Third one is interrogative. This one is for negative sentence. Third one is interrogative. Interrogative. What is the interrogative? Interrogative एक वर्ड आते ही हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड एक क्वेश्चन पूछा गया है और हेल्पिंग वर्ब से हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं देन वी आर एबल टू गिव आवर आंसर इन यस एंड ए नो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आस्क विद द हेल्प ऑफ ए डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब and a object. Change the same sentence. You have sentence here. For interrogative sentence, change it. What you will do? First of all, you will take a helping verb. What is helping verb? Did. Then take your subject. Subject is here. Take it. Did I? And this one is second form of the verb. But we have to write first form of the verb. Then you make it, change it. Did I receive? Then what will be? According to format follow. Did you have written? Subject you have written. Verb you have written. Then object. Did I receive your letter yesterday? And sign of a interrogation because did is a here. Is it clear? Next one. Move to next one. It is did is here, it means interrogative, and side by side note is also here. It means it is interrogative plus negative both. Interrogative plus negative both. Change this sentence, change the same sentence. What is the difference only? Did here, subject, first form, object. Only not. And where we add after subject, it means here we add not. Did I not receive your letter yesterday? Did I receive your letter yesterday? Not. We will add here after subject. Next one is interrogative sentence but with WH word. Change this sentence according to WH word. Any WH word you can take and change it. WH word we will take first. Why? Then what you will take? Helping verb. Then you will take subject. Then you will take first form of verb. Receive your letter yesterday. Is it clear? Now, how to identify this tense in normal speaking where we will use? Where we will use? मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था आपको मैंने पहचान उसकी भी बताई थी. क्या थी वो पहचान? भाई मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं जाता हूँ, मीन्स ता हूँ, ता करता हूँ, करती हूँ, करते हैं, इस तरह से आएगा. बट यहाँ पे आपको कैसे पहचान करोगे आप कि भाई कौन सा हमारे, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है तो स्टार्टिंग में हमारे जो माइंड में क्वेश्चन अराइज आता है, कोई भी स्टेटमेंट आती है वो हिंदी में आती है और उसको हम ट्रांसलेट करने की ट्राई करते हैं. ट्रांसलेट करने की ट्राई करते हैं तो हमें पता होता है कि सेंटेंस किस तरह का है. मैंने खाना खाया, या मैं वहाँ गया, मैंने पानी पिया, मैंने काम किया. इस तरह से इन के सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस में लास्ट में जो है आपको ता है, ते है, ती है या था, थे, थी, इस तरह से मतलब ता, ते, ती ये नहीं मिलेगा आपको. आपको क्या मिलेगा? गाया, खाया, पिया, सोया, नहाया. इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेंगे.
तो ये बहुत ही इजी फॉर्मेशन है, आप इसको लर्न करेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मेशन हम जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे विदाउट फॉर्मेशन से. तो देन यू राइट डाउन दिस पोर्शन and in your notebook for learning, that it will be very easy to learn and learn it. Let's discuss uses of past indefinite tense. Uses. What is the foremost use? For showing action that is happened in past, means sometimes we get some words in a sentence that will show the past activity of our action. Which type of words? Yesterday. Past showing time is a given. अगर हमें सेंटेंस के अंदर टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, और उस समय को हमें ऑब्जर्व करना है कि ये पास्ट का समय दिया गया है, उन वर्ड से हमें पता लगता है कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है. देखो अगर हमें यस्टरडे मिलता है, हमें क्या आइडिया हुआ कि इट इज़ पास्ट टाइम, अगो, लास्ट. देन वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट वन इज, कोई भी जो एक्सप्रेस करना है, हमें एक्शन को एक्सप्रेस करना है, किसी इवेंट को एक्सप्रेस करना है जो हमारा पास्ट में हैपन हुआ है. लाइक आई सॉ मैनी डियर इन द जू. इट मीन्स यहाँ पे आपको ब्लैंक है, यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व मत कीजिए. ये देखें, आई मैनी डियर इन द जू. मैंने बहुत सारे डियर देखे जू के अंदर. तो आपने देखे या डियर देखा, या बहुत सारे हैं, मैनी हैं तो बहुत सारे डियर देखे, तो क्या करोगे आप? पास्ट में देखे ना आपने. तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज, और अब सिंपल सेंटेंस है आपका, नो नेगेटिव, नो क्वेश्चन मार्क. देन व्हाट यू विल डू, you will do V2, second form of the verb, and it is the second form of the verb. What is the verb here? See. Second form saw, third form seen. Next one is to express any habit of past. किसी पास्ट की हैबिट को हमें किसी की एक्सप्लेन करना है कि भाई वो ये हैबिट इसके अंदर शुरू से है, पास्ट से है, पहले से है. ऐसी हैबिट को हमें एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टेंस का यूज़ करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. टू एक्सप्रेस हैबिट इन पास्ट, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ. हमें पीछे की कोई बात बतानी है जो किसी की हैबिट का पार्ट है, जो किसी का हैबिचुअल एक्शन है कि भाई गांधी जी हमेशा सच्चाई बोलते थे. क्या है? गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ. ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है. और क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? स्पोक, V2. व्हाट इज इट? V2. Sentence start with, sometimes we got sentences start with these group of words. It's time, it's high time, it's about time. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पेपर्स में बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देती हैं कि आपको क्या वर्ब अप्लाई करनी है यहाँ पे. इस तरह से अगर आपको फ्रेज मिले, कोई टाइम जो शोइंग जो वर्ड है वो मिले, कोई एक्शन को इंडिकेट करे, तो हमारे माइंड में उसी सेम टाइम क्लिक कर जाता है कि हमें क्या वर्ब फिल करनी है. सी इन दिस एग्जाम्पल, इट्स टाइम यू स्टडीड. इट्स टाइम, दिस वन इज द फ्रेज आई यूज हियर. इट्स टाइम. इस टाइम को देखते ही आपको क्लिक आ जाएगा कि अरे मैंने वीडियो में क्या देखा था. इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम. इफ वी आर यूजिंग दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स देन टाइम फ्रेज, देन वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट, एंड इट इज second form of the verb. Study, studied, studied. So these are these 3-4 rules of the simple past, or you can say past. One more thing in past indefinite I want to discuss with you, use of used to. हम एक वर्ड होता है used to, जिसका हम बार बार कई बार यूज करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बट हमारे माइंड में कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार हम सेंटेंस उसके बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू यूज करते हैं, ही यूज्ड टू, और कई बार हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब को लेकर या मेन वर्ब को लेकर उसके बाद यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं. तो इसमें क्या डिफरेंस है?
इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कम यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू को हम कैसे करेंगे? पास्ट हैबिट, मैंने एक पास्ट हैबिट लिखी है यहाँ पे, रवि की पास्ट हैबिट, मिस्टर रवि यूज्ड टू स्मोक, और मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का यूज किया है। कोई मैंने यहाँ पे और अलग से हेल्पिंग वर्ब या और कोई वर्ब मैंने नहीं ली है, मैंने डायरेक्ट यूज्ड टू का यूज किया है सब्जेक्ट के बाद। तो व्हाट इज द रीजन? इट मीन्स रवि यूज्ड टू स्मोक। रवि स्मोक करता था लेकिन अब नहीं करता, पहले करता था। हम जब डायरेक्ट यूज्ड टू कहेंगे रवि यूज्ड टू स्मोक, इट मीन्स रवि पहले स्मोकिंग करता था, अब स्मोकिंग नहीं करता है। मैंने सामने आपको इंडिकेट भी किया है, नोट नाउ। इट मीन्स एट प्रेजेंट वो स्मोकिंग नहीं करता है। इज इट क्लियर? मूव टू नेक्स्ट। पास्ट हैबिट स्टिल गोइंग ऑन। एक हमारी हैबिट तो पास्ट की है, बट वो अभी भी कंटिन्यू है। वहां पे अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं मिस्टर रवि, इस जगह पे मैं आपको कहूं मिस्टर रवि इज यूज्ड टू स्मोक, इट मीन्स क्या हो गया? रवि पहले भी स्मोकिंग करता था, उसका इतना आदी हो गया है कि वो टास्क उसने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है, अभी भी वो स्मोकिंग करता है। इट मीन्स ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास वर्ब है मिस्टर रवि इज यूज्ड टू स्मोक, तो क्या हो जाएगा कि वो अकस्टम हो गया है, उस चीज का आदी हो गया है। वन मोर एग्जाम्पल टेक। अख्तर इज यूज्ड टू स्विमिंग एवरी डे। अख्तर, मैंने देखो यहाँ पे वर्ब यूज किया पहले और फिर यूज्ड टू को यूज किया है, इज यूज्ड टू स्विमिंग एवरी डे। इट मीन्स क्या हुआ? क्या आपको क्लियर है? अभी आपके पास आंसर है इस चीज का कि क्यों? क्योंकि अख्तर जो है वो स्विमिंग पहले भी करता था, पास्ट में भी शुरू से करता आ रहा है और अब भी करता है हर रोज, क्योंकि वो उसके हैबिट का एक पार्ट बन गया है और वो इसके लिए एकस्टम हो गया है, आदी हो गया है। इज इट क्लियर नाउ? यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड टू। नाउ वी विल टेक two examples for common errors. Sometimes we get this type of common errors in exam. One example, one sentence I write here. They have left for Agra yesterday. Is it right or wrong? ये sentence right है या wrong? ये sentence wrong है। क्यों है ये sentence wrong? आप मुझे बताएं। देखो, आपका subject है, verb है, जो भी object है और verb, सॉरी जो ये word है आपका एक क्लास में क्या है? यस्टरडे। अब यस्टरडे वर्ड को हमने रूल्स के अंदर इससे अभी 1 मिनट बिफोर, यस्टरडे कहाँ पे यूज होता है? यस्टरडे पास्ट एक्शन को शो करने के लिए होता है। यस्टरडे, अगो, लास्ट, ये वर्ड्स मैंने लिखे थे, अभी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था। फिर जो यस्टरडे है, अगर यहाँ यस्टरडे है तो यहाँ पे भाई हैव और लेफ्ट कैसे आ गया? हैव और लेफ्ट तो हमने कौन से टेंस में किया है? हैव और लेफ्ट तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था हमारा? हैज, हैव प्लस V3। ये तो वही फॉर्मेशन आ गई हमारी, वो आ गई। तो ये फिर यस्टरडे कैसे हो गया? पास्ट कैसे हो गया? अगर यस्टरडे है तो हमें क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम ये यहाँ क्या कर देंगे? लीव, लेफ्ट लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। हम इस हैव को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फिर एक राइट सेंटेंस हो जाएगा। एक वन मोर एग्जाम्पल। He has passed the secondary school exam in 1978. अब 1978 में सेकेंडरी एग्जाम पास किया, वह he has passed, ये कह रहा है he has passed, पास्ट कर चुका, बट ये तो प्रेजेंट तो नहीं है। प्रेजेंट वही सेम फॉर्मेशन आ गई हमारी, यहाँ हैज हैव के साथ V3 आ गया। बट बात किसकी हो रही है? स्कूल एग्जाम इन 1978। बात तो बहुत पास्ट की हो रही है। अगर पास्ट की हो रही है तो हम क्या करेंगे? हमें तो V2 यूज करना है भाई। देन व्हाट वी विल डू?
ये जो प्रेजेंट का जो इंडिकेशन है इसको हमें रिमूव कर देंगे, देन इट विल बी अवर ए राइट सेंटेंस. सो दिस वन इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. If you like this video, comment in the comment box.